Good morning, student. In previous lecture, we will learn about the prokaryotic cell. In this lecture, we will learn about the next topic in the chapter number 5, eukaryotic cell. See here, this is the eukaryotic cell. This is nucleus and this is organelles. This is nucleus and this is organelles. Eukaryotic cells in which the nucleus has a definite nuclear membrane are known as eukaryotic cells. Cells in which the nucleus has a definite nuclear membrane are known as eukaryotic cells. These cells exhibit presence of membrane-bound cell organelles. These cells exhibit presence of membrane-bound cell organelles. See here in the figure, this is the organelles. This is the organelles, cell organelles, and this is the nucleus. In eukaryotic cells, variety of structures are present. These are called as organelles. These are called as organelles which perform various functions within the cell. For example, ribosomes which can make proteins, endoplasmic reticulum which can sorts and packages the proteins, mitochondria which produce energy molecule that is called as ATP, adenosine triphosphate molecules. Here the organelles which are present in the eukaryotic cells, these organelles are cell membrane, cell wall, endomembrane system. In endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles are present. Mitochondria, plastids, ribosomes, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosome and centrioles, nucleus and microbodies. All these are the organelles which are present in eukaryotic cell. Here this is the figure of eukaryotic cell. That is, the figure is plant cell. यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्लांट सेल्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलेंगे प्लांट सेल, और जो एनिमल्स में हो गए उनको बोलेंगे एनिमल सेल. तो ऑल दीज organelles are present in the eukaryotic cell. All these organelles are studied in detail in next slide. Here in this figure, this is the cell wall. This is the plasma membrane, or it is also called as cell membrane. The first one is cell membrane, or it is also called as plasma membrane. Then cell wall, then endomembrane system, that is endoplasmic reticulum. This is the endoplasmic reticulum. Golgi complex, this is the Golgi complex. Then lysosomes, this is lysosomes, and vacuoles, this is the vacuole. All these are together constitute endomembrane system. Then mitochondria, this is mitochondria, plastids, then cytoskeleton, cilia and flagella, centrosomes and centrioles, nucleus and microbodies. All these are
organelles are present in eukaryotic cell. Here, this is the animal cell. This is the animal cell. The difference between these two cells, plants and animal cells, the difference is, in case of plant cell, cell wall is present, but in case of animal cell, cell wall is absent. मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो है, तो उसमें डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हैं, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. तो हियर इन दिस एनिमल सेल the organelles which are present in the animal cell is, the first one is cell membrane, then second is endomembrane system, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes. Here vacuoles are totally absent in the animal cell. It is present in plant cell. Mitochondria, plastids, ribosomes, cytoskeleton, flagella, cilia and flagella, centrosome and centrioles, nucleus and microbodies. All these are the organelles which are present in eukaryotic cells. That means in plant cells and animal cells, some organelles are present in plant cells while some organelles are absent in plant and animal cells. Then the first cell organelle in the eukaryotic cell, it is called as cell membrane. It is the outermost covering. Cell membrane, it is the outermost covering. In this cell membrane is thin quasi-fluid. Cell membrane is thin quasi-fluid structure present both extracellularly and intracellularly. Quasi-fluid. What is meant by quasi-fluid? Quasi-fluid means partly liquid and partly solid. This condition is called as quasi-fluid. It is due to phospholipids. Quasi-fluid is due to phospholipids. That means quasi-fluid means what? It is partly liquid and partly solid. मतलब थोड़ा लिक्विड पार्ट और थोड़ा सॉलिड पार्ट, ऐसे दोनों पार्ट्स जिसमें होते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, विच इज प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलरली एंड इंट्रा सेल्युलरली. एक्स्ट्रा सेल्युलरली मीन्स व्हाट? सेल के बाहर, और इंट्रा सेल्युलरली मीन्स व्हाट? सेल के अंदर. तो सेल के बाहर और सेल के अंदर जो है तो थोड़ा पार्टली लिक्विड और पार्टली सॉलिड जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहता है. एक्स्ट्रा सेल्युलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट एंड इंट्रा सेल्युलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल. देखो एक्स्ट्रा सेल्युलर में जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर उसको और एक नाम है बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन. तो ये जो मेम्ब्रेन है तो एक्स्ट्रा सेल्युलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट जो है तो उसके अराउंड में एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल में मतलब सेल के बाहर होता है. एंड इंट्रा सेल्युलरली मतलब सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके कवरिंग जो है तो वो कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. इंट्रासेल्युलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. इट सेपरेट्स सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम साइटोसोल. देखो इट सेपरेट्स सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम साइटोसोल. मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है तो वो क्या काम करता है? इट कैन सेपरेट्स द सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोलेंगे हम? जो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल
दिस स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स और इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स। तो ये जो तरह तरह के ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं, तो उस ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन करता है फ्रॉम साइटोसोल। साइटोसोल मीन्स व्हाट? साइटोसोल मीन्स it is a semi-fluid substance filling the interior of the cell and embedding the other organelles except nucleus. Make up the cytoplasm. देखो जो साइटोसोल, साइटोसोल मीन्स क्या है? ये इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स भी हम उसको बोल सकते हैं। इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स और ग्राउंड प्लाज्म भी उसको बोल सकते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या मैट्रिक्स। तो ये जो साइटोसोल है, तो साइटोसोल मीन्स क्या? इट इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज नॉट हेल्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनेल्स इन द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दैट इज द साइटोसोल। Then what is the difference between cytosol and cytoplasm? साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? तो साइटोसोल जो है तो एक पार्ट है, साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है, विच इज नॉट हेल्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनेल्स। मतलब ऑर्गेनेल्स से तो वो हेल्ड नहीं है इन द सेल, but cytoplasm is the part of cell which is contained within the entire cell membrane. साइटोप्लाज्म जो है तो वो एक पार्ट ऑफ सेल, सेल का एक पार्ट है विद इन द एंटायर सेल मेम्ब्रेन। एंटायर सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर का पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। थिकनेस ऑफ बायो मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देखो थिकनेस जो है बायो मेम्ब्रेन का वो कितना होता है? नियरली अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमिनर। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कैसा दिखता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमिनर। ट्राइलैमिनर मीन्स व्हाट? ट्राई मीन्स 3 और लैमिनर मीन्स लेयर्स, दैट मीन्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर जो हमको दिखता है वो 3 लेयर से बना हुआ हमको दिखता है। इट शोज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। उसमें क्या क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स। उसमें मोस्टली कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। अभी फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स अ लिपिड कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मीन्स व्हाट? अ लिपिड कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। एग्जाम्पल है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। तो ये जो है तो उसमें लिपिड्स प्रेजेंट होता है, जनरली मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स उसमें प्रेजेंट होता है। अरेंज्ड इन बाय लेयर। कैसे अरेंज होते हैं? बाय लेयर में। बाय मीन्स 2, 2 लेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स है तो वो अरेंज उसमें रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड्स पजेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। लिपिड्स प्रेजेंट पजेस, लिपिड्स पजेस 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। Hydrophilic. What is meant by hydrophilic? Having a tendency to mix with water. Having a tendency to mix with water. That means hydrophilic मतलब क्या है कि वाटर में मिक्स होने वाला जो है उसको हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। एंड 2 हाइड्रोफोबिक मतलब एक हाइड्रोफिलिक पोलर हेड रहता है और दूसरा जो है 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। मतलब 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। अभी हाइड्रोफोबिक जो है वो नॉन पोलर टेल्स। हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट? फेल टू मिक्स वाटर।
फेल टू मिक्स वाटर, दैट मीन्स वाटर में वो मिक्स होते नहीं है, इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। फोबिया मीन्स फियर, ये इसको बोलेंगे वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक को, और हाइड्रोफोबिक को बोलेंगे वाटर हेटिंग। तो इस तरह से जो दो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स, मतलब एक हेड रीजन होता है और दो टेल रीजन उसमें होते। सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स व्हाट, बोथ, having both hydrophilic and hydrophobic. Hence phospholipids are amphipathic. Lipid molecules are arranged in two layers, that is bilayers, in such a way that their tails are sandwiched in between heads. Here, see in this figure, this is the lipid bilayer. This is the lipid bilayer. This is the one layer and this is the second layer. This is one layer, this is the second layer. These two layers, hence it is called as lipid bilayers. In this lipid molecules are arranged in two layers, that is bilayers, in such a way that their tails are, लिपिड्स में जो होता है तो एक हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है, तो उसका जो अरेंजमेंट है, तो these layers are arranged in such a way that their tails are sandwiched in between heads. मतलब जो टेल रहते हैं उनके टेल हेड रीजन में मिक्सअप हो जाते हैं, इसी वजह से टेल रीजन जो है इट कैन नेवर कम इन कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एक्वियस सराउंडिंग। मतलब जो एक्वियस सराउंडिंग है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आता नहीं। कौन सा रीजन? टेल्स का रीजन। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उसका जो कई टेल रीजन है वो टेल रीजन डायरेक्ट एक्वियस सराउंडिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। एक्वियस मीन्स व्हाट? एक्वियस मीन्स कंटेनिंग वाटर और लाइक वाटर। कंटेनिंग वाटर मतलब जो लिक्विड मटेरियल है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में ये टेल रीजन नहीं आता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा रीजन आता है? हेड रीजन आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हेड रीजन के अंदर जो टेल रीजन है वो सैंडविच हो जाते हैं, मतलब उसमें दब जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट एक्वियस सराउंडिंग जो है तो उसके कांटेक्ट में नहीं आते। सेल मेम्ब्रेन अल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है, हियर दिस इज द प्रोटीन। Cell membrane also shows presence of proteins and carbohydrates. Carbohydrates sugar, simple sugar है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, टाइप्स है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इधर हियर दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल्स। रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। देखो रेशो जो है प्रोटीन्स और लिपिड्स का, मतलब सेल मेम्ब्रेन में जो रेशो है प्रोटीन्स और लिपिड्स का, तो वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स का और लिपिड्स का तो वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेल्स में वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आरबीसी शो अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। एग्जाम्पल दिया है कि जो आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ज्याला आपण तांबड्या पेशी म्हणतो, तर त्या तांबड्या पेशींमध्ये जे सेल मेम्ब्रेन असेल तर त्याच्यात प्रोटीन आणि लिपिड्सचे प्रमाण किती असतं? तर 52% ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेझेंट अँड 40% ऑफ लिपिड्स इज प्रेझेंट इन द ह्यूमन आरबीसीज. देन the chemical studies on human RBCs shows that the cell membrane is composed of a lipid bilayer, protein and carbohydrate. देखो सेल लेयर या सेल मेम्ब्रेन जो है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो ह्यूमन आरबीसी में किससे बना है? लिपिड बाइलेयर से. हियर दिस इज द लिपिड बाइलेयर, दिस वन एंड दिस सेकंड, दिस इज द लिपिड बाइलेयर. देन प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन एंड
carbohydrate. This is the carbohydrate, that is sugar. तो ये तीनों मिला के क्या तैयार होता है आरबीसीज में, ह्यूमन का आरबीसीज में सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है. लिपिड्स मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल्स. पिछले महीने बताया, पिछली स्लाइड में वैसा ही, पोलर हेड that is hydrophilic head and hydrophobic tails. So the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Then the ratio of protein and lipid varies in different cells. In case of human RBCs, membrane has 52% protein and 40% of lipids. Here the phospholipids, this is the head region and this is the tail region. This is the head region and this is the tail region. Here see in this is the phosphate head, that is polar hydrophilic, and this is the fatty acid tails, that is non-polar hydrophobic tail. This is the tail region and this is the head region. Based on the ease of extraction, membrane proteins are two types. दो टाइप्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन मेम्ब्रेन. देखो पहला टाइप से प्रोटीन्स का इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन मेम्ब्रेन, कि जो टोटली मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं. And second is peripheral proteins lie on the surface of membrane. Second type है peripheral protein which can be lie on the surface of membrane. Here this is the peripheral protein. This is the peripheral protein. And integral proteins are buried or embedded in the membrane. Then in the cell membrane, the next topic is fluid mosaic model of cell membrane, which is proposed by Singer and Nicholson in 1972. That is Singer and Nicholson. The fluid mosaic model of cell membrane का जो fluid mosaic model है वो किसने propose किया है? Proposed by Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in 1972. According to this model, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. According to this model, or according to this fluid mosaic model, the quasi-fluid nature of लिपिड का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड है, पार्टली लिक्विड है, पार्टली सॉलिड है. तो इट एनेबल्स जो है, एनेबल्स मीन्स व्हाट? एनेबल्स मीन्स संभव बनाना, कुछ संभव बनाना या फिर सक्षम होना. तो जो पार्टली लिक्विड और पार्टली सॉलिड नेचर जो है लिपिड का, तो उस नेचर के हिसाब से वो सक्षम बनाता है. किसके लिए सक्षम बनाता है? लैटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के मूवमेंट के लिए वो उसको संभव बनाता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर. मतलब ये बाइलेयर जो है, देखो इधर ये बाइलेयर है, ये जो है ये क्या है? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर इधर है. दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी. देखो ये जो एबिलिटी है मूवमेंट की, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है उसकी जो एबिलिटी है, इट इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स व्हाट? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली. द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली, इट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी. तो इस हिसाब से दिस इज द fluid mosaic model. This is the fluid mosaic model. Protein with carbohydrates can be attached in this model. Here the glycoprotein, protein with carbohydrates can be attached. Here
glycolipid, lipid with carbohydrates can be attached. Here lipid, glycolipids is present, here glycoprotein is present. This is the peripheral membrane protein. This is the peripheral membrane protein and this is the integral membrane protein. हमने पिछले स्लाइड में टाइप्स देखे थे, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन. तो हियर peripheral protein, this is the peripheral protein and this is the integral protein which can buried in the membrane. Then cytoskeletal filaments are present. This is the cytoskeletal filaments. This is the cholesterol. This is the protein channel or canal, protein canal and phospholipid bilayer. This is the phospholipid bilayer. This is the fluid mosaic model of cell membrane. What is the function? Then functions of the cell membrane. Transport of the molecules. The first function is transport of the molecules. Molecules जो होते हैं उनका transportation करने के लिए cell membrane जो है तो उसका वो function है. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. देखो, the membrane is selectively permeable. Selectively permeable means what? Semi-permeable. Allow certain molecules or ions to pass through it by osmosis. This is called as semi-permeable membrane or selectively permeable. Selectively permeable means what? Allow certain molecules or ions to pass through it by osmosis process. अभी osmosis means what? Osmosis means a process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable or selectively permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one. It is called as osmosis. Osmosis means what? The movement of molecules from a less concentrated solution into a more concentrated one. This is called as osmosis. Then second function, due to the fluid nature, plasma membrane can help in cell growth. देखो, उसका fluid nature होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन क्या है? इट कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ. सेल ग्रोथ होने के लिए वो मदद करता है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस. फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस. जो इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच जो जंक्शंस होता है तो वो फॉर्म करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है. सिक्रीशन ऑफ वेरियस सिक्रीशंस. सिक्रीशन जो है तो वो सिक्रीशंस भी इसमें सिक्रीट होता है. ये देखो इधर फिगर में दिया है, प्रोटीन चैनल दिया है, सेल मेम्ब्रेन दिया है, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस. कैरियर प्रोटीन्स इधर दिए हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मीन्स व्हाट? दैट एंडोसाइटोसिस इट इज द प्रोसेस taking in of matter by a living cell by invagination of its membrane to form a vacuole. और दूसरी डेफिनेशन है एंडोसाइटोसिस मीन्स इट इज द प्रोसेस by which a living cells takes up molecules bound to its surface. This is called as endocytosis. And also it can function, the another function of cell membrane is cell division. मतलब पेशी विभाजन जो है तो पेशी विभाजन में भी उसका फंक्शन आता है. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है एक फंक्शन, तो उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया है. हियर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड जो है तो वो मेथड इधर दिया है. ये आपके इसमें नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ.
Passive transport means what? Movement of molecules across the membrane along the gradient, concentration gradient, that is from higher concentration to the lower concentration gradient without the expenditure of energy. मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है तो वो मूवमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से कहाँ जा रहा है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जा रहा है. दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. हियर इन दिस फिगर दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज सिंपल डिफ्यूजन एंड दिस इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन. दिस इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन. It is of two types, simple diffusion and osmosis. Simple diffusion means what? Movement of natural solutes across the membrane. This is the, see here in the figure, this is the simple diffusion. This is the simple diffusion. And second type, osmosis, movement of water by diffusion across the membrane. Movement of water by diffusion across the membrane. मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो मूवमेंट होता है तो ये जो है उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस. पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर सो दे रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर देयर ट्रांसपोर्ट which is called as facilitated diffusion. Which is called as facilitated diffusion. Then second type, that is called as active transport. Movement of molecules across the membrane against the concentration gradient, that is from lower to higher concentration. इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है. पैसिव के अपोजिट एक्टिव में होता है. मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो कैसा होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. मतलब उसमें क्या लगता है? एनर्जी उसमें लगता है. देखो इधर दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन्स में से जो मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं या फिर पास आउट होते हैं तो फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आता है तो उसको क्या लगता है? एनर्जी लगता है. द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पर्म थेरी.